یہ ایک حیرت انگیز دنیا کی پریوں کی کہانی ہے جن کو ونگز کہا جاتا ہے، جو کہ ہنر کی تلاش کرتی ہیں، جوان لوگوں کے خواب پورے کرنے نکلی ہیں اور ان کو ہنر کے چور سے بچانے کی کوشش میں لگی ہیں۔ وہ چور تمام ہنرمند لوگوں کو اغوا کر رہا ہے۔ یہ سفر ان پریوں یعنی ونگز کے بارے میں ہے جو آپ کو سحر میں مبتلا کر دے گا اور جڑے رہنے پر مجبور کر دے گا۔ چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ رات ہے، بارش ہو رہی ہے، ونگز اپنے مشن پر کام کر رہی ہیں۔ ونگز کا مشن ہے ہنرمند لوگوں کے چور کو پکڑنا۔ کچھ ونگز اپنی وین میں سراغوں پر کام کر رہی ہیں۔ ایک اہم سراغ ہے عجیب سی مٹی جو ہر اغوا کی جگہ سے ملی ہے۔ سراغوں پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چائے بھی پی رہی ہیں۔ دوسری ونگز باہر بارش میں چور کا پیچھا کر رہی ہیں، جسے انہوں نے تب دیکھا تھا جب گٹار بجانے والا اغوا ہوا تھا، لیکن ان 24 گھنٹوں سے وہ لاپتہ ہے۔ وہ اونچے نیچے رستوں سے ہوتے ہوئے چور کے پیچھے جاتی ہیں، پکڑنے ہی لگتی ہیں کہ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ونگز کے جانے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے۔ ونگز جلدی میں اپنے ٹی وی شو جس کا نام واو ہے اس میں جاتی ہیں، جدھر وہ اپنے ہنر کو دکھاتی ہیں۔ ان کے ہنر مختلف ہیں، جیسے کہ کھانا پکانا، فیشن کرنا، چیزیں ٹھیک کرنا اور گانا بجانا وغیرہ۔ سب کے ہنر الگ ہیں لیکن تعریف کے قابل ہیں۔ ونگز ہنرمند کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ اس دوران ان کو ایک لڑکی کا گانا بہت پسند آتا ہے۔ وہ لڑکی اینیبل ہوٹل میں کام کرتی ہے۔ ونگز اینیبل کی کام میں مدد کرتی ہے تاکہ وہ اپنا ہنر شو میں آ کے دکھا سکے۔ ونگز اینیبل کو ٹی وی شو میں ہنر دکھانے کے لیے لاتی ہیں۔ سب کو اینیبل کا گانا بہت پسند آتا ہے۔ اس کی آواز بہت میٹھی ہوتی ہے، لیکن ہنر کا چور اینیبل کو اغوا کر لیتا ہے۔ ونگز اس کی تلاش کرتی ہیں۔ اینیبل کالے جنگل میں سایوں سے ڈر رہی ہے۔ بلوم اینیبل کا سایہ پانی میں دیکھتی ہے، جنگل کی طرف بڑھ کے اینیبل کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو دوسرے گم لوگ بھی نظر آتے ہیں۔ اینیبل بلوم کو روتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے گھر جانا ہے۔ اس کا ایک جھمکا کہیں نہیں مل رہا ہوتا۔ اینیبل کان کی طرف اشارہ کر کے بتاتی ہے۔ اسی دوران اینیبل ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ بلوم اس کا پیچھا کرتے ہوئے درختوں میں پھنس جاتی ہے۔ بلوم کی ڈر سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ونگز اسے بتاتی ہیں کہ بلوم نے برا خواب دیکھا ہے۔ ونگز مل کے فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ اینیبل کی مدد کریں گی۔ ونگز کا ٹی وی شو شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ونگز بیمار ہونے کا ڈرامہ کرتی ہیں اور باقی ونگز ہنر کی تلاش میں نکل جاتی ہیں۔ جاسوس ونگز پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ہر حرکت کو غور سے دیکھتے ہیں۔ ونگز اس جگہ جاتی ہیں جدھر اینیبل غائب ہوئی تھی۔ ادھر ونگز کو اینیبل کا ایک جھمکا ملتا ہے اور عجیب سی مٹی ملتی ہے جسے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتی ہیں۔ ایک دم ونگز کو انوکھا احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دم کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہیں۔ اس جگہ سب کو اپنی طاقتیں بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ سامنے ایک گول چکر ظاہر ہوتا ہے۔ ونگز اس کے ذریعے اینیبل کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اس کی مدد کرتی ہیں۔ اس پہ وہ عجیب مٹی پھینکتی ہیں تاکہ وہ آسانی سے گول چکر سے نکل سکے، لیکن اینیبل باہر نہیں نکل سکتی۔ اس گول چکر کی طاقت ونگز کو ان کی جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ اینیبل ادھر ہی پھنسی رہتی ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ایک لڑکا کشتی پر ہے، وہ اپنا ہنر دکھانا چاہتا ہے لیکن کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے موبائل سے دو کھیلتے ہوئے بچوں کی کشتیوں کو قابو میں کر کے چلا رہا ہوتا ہے کہ اسے پانی میں کسی جانور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ موبائل سے اس کی ویڈیو بنانے لگتا ہے۔ وہ خوفناک جانور کشتی کے اوپر آ جاتا ہے۔ لوگ اس جانور سے ڈر جاتے ہیں۔ دوسری طرف ونگز اپنے مشن کو لے کے پریشان ہے اور اس خاص مٹی کی جانچ کرتی ہیں کہ ایک دم اس خوفناک جانور والی خبر ٹی وی پر چلنے لگتی ہے۔ اس میں لوگ اس جانور کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ بچہ بھی نظر آتا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کے ونگز کچھ محسوس کرتی ہیں۔ ونگز کا ٹی وی شو شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے شو کے لیے ہنر کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ وہ بچہ ان کے آگے ہی ہوتا ہے۔ ونگز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ تبھی وہ خوفناک جانور اس بچے پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ ونگز اس کا مقابلہ کرتی ہیں لیکن اس جانور کو ونگز میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ جانور اسی بچے کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ونگز اس بچے کو ڈھونڈ کے جس کا نام سیم ہے اس سے دوستی کرتی ہیں، اس کی مدد کا وعدہ کرتی ہیں۔ ایک بار پھر وہی جانور ان پر حملہ کرتا ہے۔ اس دوران اس کی عجیب گھڑی ونگز کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ ونگز پریوں میں بدل کے سیم کو بچا لیتی ہیں۔ سیم کو اپنے ٹی وی شو میں لے کے آتی ہیں جہاں سیم اپنا ہنر سب کو دکھاتا ہے جو سب کو پسند آتا ہے۔ لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ سیم اپنے بہادری کے قصے مزے سے اپنے دوستوں کو سنا رہا ہوتا ہے۔ تبھی ونگز آ جاتی ہیں اور سیم کو لے کے چلی جاتی ہیں۔ ونگز اور سیم اس جانور کو پکڑنے کے لیے پلان بناتے ہیں کیونکہ وہ خوفناک جانور مسلسل پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ ونگز سیم کی مدد لے کے اپنے ٹی وی شو کے لیے نکلی ونگز کو شو کا حصہ
बनाती हैं, फिर भी वो सब गटर के नीचे जाते हैं उसी खौफनाक जानवर को ढूंढने। उधर खूब लड़ाई होती है उस खौफनाक जानवर के साथ। वो अपनी घड़ी लेना चाहता है लेकिन हार के चला जाता है। विंग्स समझ जाती हैं कि जानवर को अपनी घड़ी चाहिए जो उनके पास है। विंग्स प्लान के मुताबिक जा रही होती हैं, तो रास्ते में जानवर उन पर हमला करता है। उनके दरमियान मुकाबला होता है और लड़ाई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो एक दूसरे पर मुसलसल हमला करते हैं। इसी लड़ाई में जानवर अपनी घड़ी ले जाने में कामयाब हो जाता है और गोल चक्कर बना के उसके जरिए चला जाता है। उस घड़ी में विंग्स ने ट्रैकर लगा दिया था ताकि विंग्स जानवर के जाने के बाद उसको ढूंढती हैं, तो उनको पता चलता है वो जानवर तो ख्वाबों की दुनिया में चला गया है। ब्लूम ख्वाब के रास्ते एनाबेल के पास जाना चाहती है। विंग्स उसके लिए परेशान होती हैं लेकिन फिर उसे जाने देती हैं। उस पर वो अजीब मिट्टी डाल देती हैं। ब्लूम ख्वाब के रास्ते एनाबेल से उस घड़ी का मालूम करती है। एनाबेल बताती है उसने वो घड़ी देखी है जब वो अपने कमरे में गाना गा रही थी, तो एक आदमी उधर आया था। वो घड़ी उसके पास से गिर गई, तब उसने वो देखी। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि काले साए आने लगते हैं। एनाबेल भाग जाती है और ब्लूम ख्वाब से जाग जाती है। विंग्स का टीवी शो शुरू हो जाता है। उनके नए हुनरमंद को शो में लाना है, तभी वो सब कुछ महसूस करती हैं। उनको नए हुनरमंद का पता चलता है। विंग्स शो के लिए हुनर की तलाश में पेरिस जाती हैं। उधर डिजाइनर सोफी को ढूंढ लेती हैं, जिसका हुनर उनको पसंद आता है, लेकिन वो शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। सोफी फैशन शो में हिस्सा लेती है। विंग्स भी साथ जाती हैं। सब अपने कपड़े दिखा रहे होते हैं कि जमीन हिलती है और वो जानवर फिर आ जाता है और सोफी को ले जाता है। विंग्स परियों में बदल के सोफी को बचाने जाती हैं। जानवर सोफी को नीचे उतार के विंग्स से लड़ाई करता है। विंग्स जानवर को हरा देती हैं और सोफी को बचा लेती हैं। ब्लूम ख्वाब में सोफी को जंगल में देखती है। असल सोफी कहीं कैद होती है। विंग्स सोफी की जासूसी करते हुए उसके पीछे जाती हैं। सोफी ब्लूम के सामने साए में बदल के उसको केक में गिरा देती हैं। अगले दिन सोफी की मालूमात लेने विंग्स उसकी दोस्त नैडीन के पास जाती हैं। तभी उनको नैडीन में कुछ महसूस होता है। उसमें हुनर महसूस करके अपने टीवी शो में बुलाती हैं। नैडीन विंग्स को बताती है कि ये उसका ख्वाब था। नैडीन शो में अपना हुनर दिखाती है। सब बहुत तारीफ करते हैं। इसी दौरान एक आदमी नैडीन को शो में कहता है कि सोफी उसे ऊपर बुला रही है, लेकिन वो विंग्स को आने नहीं देता। गड़बड़ का एहसास होते ही विंग्स परियों में बदल जाती हैं और नैडीन को तलाश करती हैं। तब वो नैडीन को नकली सोफी के पास गिरा हुआ देखती हैं। नैडीन को नकली सोफी से बचाती हैं। विंग्स शो में अपने हुनर भी दिखाती हैं, लेकिन ब्लूम गलती से मेजबान के नकली बाल उतार देती है। उसे शो से निकाल देते हैं। विंग्स बातें कर रही होती हैं कि ब्लूम अब शो में नहीं जा सकेगी। उसी दौरान एक नामालूम लड़की उनके घर में दाखिल होती है, जिसका मुंह छुपा होता है। विंग्स उसे देखकर हैरान होती हैं। उनका टीवी शो शुरू हो जाता है। शो के मेजबान विंग्स को बताते हैं कि ये लॉराली है जो ब्लूम की जगह विंग्स का हिस्सा बनेगी। ब्लूम सबको बाय कह के वहाँ से चली जाती है। जासूस कार में विंग्स की जासूसी कर रहे हैं। विंग्स को कुछ खास महसूस होता है। विंग्स हुनर की तलाश में जाती हैं। जासूस ब्लूम का पीछा करते हैं। विंग्स से खाना बनाने के मुकाबले में जाती हैं और विंग्स मुकाबले में उस लड़के को देखती हैं जो ख्वाब में उनको नजर आता है। उस लड़के का ख्वाब अच्छा खाना बनाना होता है, लेकिन वो जल्दी मायूस हो जाता है। विंग्स उसको हौसला देती हैं। उसका हुनर पहचानने में उसकी मदद करती हैं। इस तरह वो लड़का मुकाबला जीत जाता है। ब्लूम एनाबेल के घर सुराग इकट्ठा करने जा रही होती है, तो जासूस उसका मुसलसल पीछा करते रहते हैं। ब्लूम जासूस से बच के निकल जाती है। उधर परी में बदल के मशकूक लड़के का पीछा करती है। वो लड़का भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार ब्लूम को पुलिस जासूस गाड़ी में बिठा के ले जाती है। जासूस ब्लूम से मुख्तलिफ सवाल करते हैं। वो एनाबेल के अचानक गायब होने में हरकत में आ गए हैं। जासूस ब्लूम से अजीब घड़ी और एनाबेल का मालूम करते हैं। घड़ी पर ब्लूम की उंगली के निशान मिलते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। तभी वो उसे छोड़ देते हैं। विंग्स हुनर की तलाश में बीजिंग जाती हैं और लोगों के कंगफू के मुकाबले में से हुनरमंद ढूंढ लेती हैं। ब्लूम भी उधर पहुंच जाती हैं। सब मिलके कंगफू के हुनरमंद को अगवा होने से बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसे अगवा होने से नहीं बचा सकती। उनका मुकाबला शमन से होता है, जिसने कंगफू हुनरमंद को अगवा किया होता है। विंग्स शमन को मुकाबले के बाद पकड़ लेती हैं और साथ ले जाती हैं। विंग्स शमन से पूछताछ कर रही होती हैं कि लॉराली आ जाती है। वो उसे जान छुड़ा के वापस आती हैं, तो शमन गायब हो चुका होता है। जादुई दुनिया का काला साया उसको चुरा कर ले जाता है। विंग्स को अगले हुनरमंद के बारे में खास महसूस होता है। सब विंग्स हुनरमंद की तलाश में लंदन जाती हैं। लंदन में एक बच्ची मैडलिन है, जिसके पेरेंट्स
जबरदस्ती पियानो बजाना सिखाते हैं, लेकिन उसका ख्वाब कुछ और ही है। विंग्स मैडेलिन से मिलती हैं। वो स्टेज से पीछे खड़ी होती है, लेकिन वो पियानो बजाना नहीं चाहती। तब वो वहाँ से चली जाती है। विंग्स उसको ढूंढ लाती है और उदास होने की वजह पूछती है, पर वो बताती है कि वो गिटार बजाना चाहती है। विंग्स मैडेलिन को स्टेज पर गिटार बजाने के लिए लेके आती है, पर शमन मैडेलिन को गायब कर देता है। विंग्स परियां बन के मैडेलिन को शमन से बचा लेती है। मैडेलिन गिटार बजा के सबको अपना हुनर दिखाती है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी पर फख्र महसूस करते हैं। क्वीन अपनी नाकामी पर शमन पर बहुत गुस्सा करती है, उससे ताकतें वापस ले लेती है। यही उसकी सजा होती है। अंधेरी दुनिया में क्वीन विंग्स को हराने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो मुसलसल नाकामियों से थक गई है। लोराली टीवी शो में सब विंग्स को पीछे करके खुद आगे रहने की कोशिश करती है। वो सब विंग्स को अपनी असिस्टेंट कहती है। वो अब बीच पे मौजूद है, हुनर को ढूंढने निकले हैं। विंग्स को काबू में करने के लिए क्वीन अपने लोगों की मदद से वाव टीवी शो के मेजबान को अपने काबू में कर लेती है। शो के मेजबान अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। वो विंग्स का टेस्ट लेने का फैसला करता है, क्योंकि उसका दिमाग क्वीन के इशारों पर चल रहा होता है। विंग्स बीच पर है और क्वीन ने अपने लोग विंग्स के पीछे लगा दिए। लोग समझते हैं कि विंग्स का टेस्ट लिया जा रहा है। वो लोग मजीद खतरनाक होते जा रहे हैं और विंग्स को मारने की मुसलसल कोशिश में लगे हैं। पानी के नीचे शार्क्स भी तेजी से विंग्स का पीछा करते हैं और उन पर हमला करते हैं। ये सब क्वीन के हुक्म पर हो रहा है। विंग्स उनका मुकाबला कर रही हैं और वो समझ जाती हैं ये इंसान नहीं है। तभी विंग्स फैसला करती हैं कि अपनी ताकतों के जरिए इनको हरा देंगे। विंग्स परियों में बदल के उनको हरा देती हैं। ब्लूम दोस्त के साथ जासूसों के पीछे हैं। वो देखना चाहते हैं कि अजीब घड़ी जासूसों से कौन हासिल करता है। जो हासिल करने आएगा वो उसे पकड़ लेंगे। वो जासूसों पर नजर रखते हुए एक मशकूक आदमी से टकरा जाती हैं। ब्लूम के हाथ उसकी घड़ी लग जाती है। वो आदमी उधर रुक जाता है और ब्लूम से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। वो मशकूक आदमी, जिसका नाम जिम है, काली दुनिया की क्वीन को हराने के लिए ब्लूम के साथ मिल गया है। वो लोग बर्फीली जगह से गुजर रहे हैं, पहाड़ों पर ऊपर नीचे चढ़ते जा रहे हैं। बहुत मुश्किलात का सामना वो लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विंग्स हुनरमंद की तलाश में स्विट्जरलैंड पहुंच जाती हैं। वो जगह उन्होंने ख्वाब में देखी होती है। जिम और ब्लूम भी बर्फ से मुश्किलात से गुजरते जाते हैं और एक चेयर लिफ्ट में सवार होके ऊपर जा रही होती हैं कि लिफ्ट रुक जाती है। वो उसमें फंस जाती हैं। तभी जिम ऊपर से रास्ता बना के निकलता है और ब्लूम को भी निकाल लेता है। दूसरी तरफ काले साए बर्फ पर फैल जाते हैं, जिधर बर्फ में हुनर का मुकाबला हो रहा है। सिल्क बहुत मायूस नजर आती है, लेकिन विंग्स उसको उम्मीद दिलाती है कि वो जीत जाएंगे। उसका ख्वाब पूरा होगा। काले साए विंग्स की गिर्द फैल के उनको काबू में करने की कोशिश करते रहते हैं। विंग्स परियों में बदल के साए को हराती रहती हैं ताकि सिल्क अपना हुनर अच्छे से दिखा सके। सिल्क की बारी आ जाती है और वो हुनर दिखाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए अचानक से रुक जाती है, मुकाबले से बाहर हो जाती है। सब लोग बहुत हैरान होकर ये मंजर देखते हैं। सिल्क मुकाबला हार जाती है। उधर बर्फीले रास्तों पर जासूस ब्लूम का पीछा करते रहते हैं। वो मामले की तह तक जाना चाहते हैं। तभी इतनी मुश्किलात से गुजरते जा रहे हैं। जिम और ब्लूम अपना मुश्किलात से भरा सफर जारी रखते हुए अजीब घड़ी बनाने वाले के पास पहुंच जाते हैं, जिधर क्वीन के खौफनाक लोग उनको घेर लेते हैं। घड़ी बनाने वाला खुद को अंदर से महफूज कर लेता है ताकि क्वीन के लोग उसको पकड़ ना सके। क्वीन के लोग बहुत ताकतवर हैं। वो ब्लूम और जिम को काबू में करके क्वीन के हवाले करके क्वीन को खुश करना चाहते हैं, लेकिन ब्लूम अपनी ताकत को इस्तेमाल करके परी बन के उनका मुकाबला करती है, पर वो तादाद में ज्यादा होते हैं। ब्लूम अकेले उनको नहीं हरा सकती। जिम भी कब्जे में होता है। ब्लूम बाकी विंग्स को अपनी घड़ी से बुलाने की कोशिश करती रहती है। जासूस भी बुलंद जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वो सब लड़ाई अपनी आंखों से देखते हैं। ब्लूम को भी परी बना देख के हैरान हो रहे होते हैं कि इसी दौरान क्वीन के लोग उनको भी पकड़ लेते हैं। क्वीन के लोग जासूसों को भी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ विंग्स सिल्क से थोड़ी मायूस नजर आती हैं, क्योंकि वो उसमें हुनर नहीं ढूंढ पाती। फिर एकदम विंग्स की घड़ी पर ब्लूम का पैगाम आता है, जिसे वो ठीक से नहीं सुन सकती, तो सिल्क उनकी घड़ी ठीक कर देती है। सिल्क बताती है कि उसका असल काम घड़ियां ठीक करना है, जो उसका ख्वाब है। उसके अंकल भी यही काम करते हैं। सिल्क विंग्स को उनके पास ले जाती है। उधर जाके जासूस बताते हैं कि गोल चक्कर में ब्लूम और जिम को खौफनाक लोग ले गए हैं। विंग्स को उस जगह से खराब घड़ी मिलती है जो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होती है, लेकिन वो थोड़ी टूटी हुई है। सिल्क विंग्स को कहती है कि वो अपने अंकल से घड़ी ठीक करवा देगी। उसका अंकल बहुत ही माहिर है। जासूस उनको बताते हैं कि सिल्क के अंकल ने खुद को अंदर बंद कर लिया है। सिल्क उन सबको बताती है कि उसके अंकल किसी पर भरोसा नहीं करते सिवाय उसके। तब वो अपने पास से चाबी
निकालती है और उस महल के दरवाजे को खोलती है। सब अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत जाल बिछे होते हैं। सिल्क सारे रास्ते साफ करती है। तब उसके अंकल ऊपर से नीचे उतर के सिल्क के पास आ जाते हैं। विंग्स वो घड़ी अंकल को दिखाती हैं और पूछती हैं क्या ये उन्होंने बनाई है। तो सिल्क के अंकल बताते हैं कि ये उनके अलावा कोई नहीं बना सकता। विंग्स उनको घड़ी ठीक करने का कहती हैं। वो अपनी कोशिश करते हैं लेकिन ठीक नहीं कर पाते। तभी सिल्क कहती है कि वो ठीक करेगी, वो विंग्स की मदद करेगी। वो घड़ी की जांच करती है और उसे चला लेती है। यही सिल्क का असली हुनर होता है। वो अब जाके अपने हुनर को पहचान लेती है। विंग्स घड़ी से जादुई दुनिया का रास्ता खोल लेती हैं। उन्हें अब ब्लूम को भी बचाना है। विंग्स उस दुनिया में दाखिल हो जाती हैं। विंग्स ख्वाबों की दुनिया में जैसे ही पहुंचती हैं, वो खौफनाक जानवर उन पर हमला करता है। वो सब अपनी ताकतों का जोर लगाती हैं। उस जानवर को काबू में करने की मुसलसल कोशिश करती हैं। जानवर उनके जाल से निकल के जंगल की तरफ भाग जाता है। विंग्स भी जल्दी से पीछे जाती हैं। जानवर तेजी से आगे बढ़ता जाता है और जंगल में गायब हो जाता है। विंग्स अपनी ताकतों से उसको ढूंढती हैं और एक जगह रुक जाती हैं। क्वीन की नजर से विंग्स छुपी नहीं होती, वो उन पर नजर रख रही होती है। ब्लूम और जिम भी क्वीन के पास हैं। क्वीन अपनी काली ताकतों से गुजर के ब्लूम और जिम के सामने आती है। ब्लूम उससे सवाल करती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। क्वीन उनको कैद किए हुए लोग दिखाती है। वो सब बुलबुलों में कैद होते हैं और मायूस दिखाई दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ विंग्स रास्ता ढूंढ रही हैं, लेकिन काला जंगल उनको कैद किए हुए है और शैतानी ताकतें उन पर हमला कर रही हैं। ऐसे में कुछ अच्छी ताकतें जाहिर होती हैं और विंग्स को उस जंगल के आगे रास्ता दिखाती हैं। उधर ब्लूम क्वीन के पीछे चलते हुए महसूस करती है कि क्वीन की आवाज एनाबेल जैसी सुरीली है। तो क्वीन ब्लूम को बताती है कि उसने एनाबेल और बाकी सब हुनरमंदों को हुनर चुरा लिए हैं। जो उसे चाहिए होता है वो चुरा लेती है। तो ब्लूम क्वीन पर बहुत गुस्सा होती है कि वो कैसे किसी का हुनर चुरा सकती है। क्वीन गुस्से में आके अपनी काली ताकतों का इस्तेमाल करती है। काली ताकतें ब्लूम को अब एक बुलबुले में कैद कर देती हैं। कैद होने के बाद ब्लूम की ताकतें क्वीन में मुंतकिल हो जाती हैं और वो और ताकतवर हो जाती है। ताकत के जोश में क्वीन खुश होती है। तभी जिम एक चाकू से खुद को आजाद करवाता है और गायब हो जाता है। क्वीन अपनी फौज को जिम को ढूंढने का हुक्म देती है। क्वीन की ताकत के असर में आके जानवर फौरन जिम को काबू में कर लेता है और क्वीन के आगे ले जाता है। जिम को मजा चखाने के लिए क्वीन जिम को जानवर और शमन के हवाले कर देती है, तो विंग्स उसे बचा लेती है। क्वीन अपने लोगों को विंग्स के पीछे लगा देती है। विंग्स क्वीन के लोगों का मिलकर मुकाबला करती हैं। क्वीन के लोग हर तरह का जाल बिछाते हैं विंग्स को काबू करने के लिए। आखिरकार विंग्स क्वीन के लोगों को मार गिराती हैं। उसी दौरान शमन विंग्स पर वार करता है, लेकिन विंग्स उस पर काबू पा लेती हैं। क्वीन अपने लोगों की नाकामी के बाद काले साई की मदद से विंग्स को पकड़ती हैं। क्वीन बहुत सी घंटियां बजा के विंग्स को नीचे गिरा देती है। ब्लूम की ली हुई ताकत से विंग्स को काबू में करती है। दूसरी तरफ असल दुनिया में वाव टीवी शो का मेजबान विंग्स की तलाश में होता है, जबकि जिम ब्लूम और हुनरमंद लोगों को चुराने में कामयाब हो जाता है। ब्लूम तेजी से अपनी साथियों की मदद को पहुंचती है जो क्वीन की वजह से जमीन पर गिरी होती हैं। ब्लूम क्वीन को अपनी ताकत से गिरा देती है। जो घंटी क्वीन बजा रही थी वो गिर जाती है। जिम उसे छुपके से उठा लेता है। क्वीन को विंग्स घेरे में ले लेती हैं। जैसे ही घंटी जिम के पास जाती है, सब हुनरमंद छूट जाते हैं, नीचे गिरने लगते हैं कि विंग्स उनको बचा लेती हैं। एनाबेल ब्लूम को गले लगा देती है। उसकी सुरीली आवाज भी वापस आ चुकी होती है। क्वीन अपने लोगों को विंग्स से मुकाबले का कहती है, लेकिन सब डर के भाग जाते हैं सिवाय शमन के। क्वीन उसे साथ लेके गायब हो जाती है। ब्लूम सैम का शुक्रिया अदा करती है कि सैम ने उनके लिए असली दुनिया में जाने का रास्ता खोला, लेकिन वो खुद नहीं जाता। वो कहता है वो अंधेरी दुनिया में रुके ही क्वीन को दोबारा ऐसे करने से रोकेगा। तो सब उसे मिलके वापस आ जाते हैं। सब लोग असल दुनिया में वापस आके वाव शो में पहुंच जाते हैं, जिनको देख के मेजबान बहुत खुश होते हैं। सब अगवा हुए लोग भी शो का हिस्सा बन जाते हैं। मेजबान की खुशी की इंतहा होती है। लेकिन दूसरी तरफ काली दुनिया में जिम क्वीन की जगह संभाल लेता है और उसके लोगों को भी अपने नीचे काम करने को कहता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वक्त बताएगा। Stay tuned to see what happens next. Thank you for watching.